Hello students, I am Lipika ma'am and here I am with the video solution for the botany part of CPT 2. So let's start with the section A. The first question is cell organelle that divides intracellular space of a cell into two compartments. Okay, so यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनेली के बारे में पूछा है जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है. कौन सा दो स्पेस है? एक है लुमिनल स्पेस एंड एक्स्ट्रा लुमिनल स्पेस. सो कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली होगा? ऑफ कोर्स यू गेट योर आंसर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि दो तरीके का है, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, and generally you can see these are some tiny tubular structures that remain attached with the outer membrane of the nucleus. Okay, so you got the idea. The question is asking about the endoplasmic reticulum. Now let's see the options. The first option is that the organelle is concentrically arranged with two different faces, convexes and concave trends. तो क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है डिस्क्रिप्शन है? नहीं, ये है गोल्जी apparatus. Golgi apparatus have two different faces and the faces are entirely different though they are interconnected. Okay, so it is different. Then in the B option we can see it is composed of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm. Yes, it is talking about endoplasmic reticulum, right? Is very rich in almost all types of hydrolytic enzyme. ये किसके लिए बोला जाता है? ये बोला जाता है फॉर द लाइसोसोम्स, जिसको हम लोग एज ए सुइसाइडल बैग मानते हैं. और यहाँ पे जो एंजाइम होता है दैट इज एक्टिव इन एसिडिक पीएच ऑलमोस्ट 4 to 5 एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल. फिर से पैकेजिंग मटेरियल ये कौन करता है? पैकेजिंग मटेरियल का काम होता है अगेन द गोल्जी apparatus. Golgi apparatus do modification of substances. It is very important site for the formation of glycoprotein and glycolipid, right? So यहाँ पे ये हो गया Golgi apparatus. तो हमारे लिए ना ये करेक्ट होगा ना ये. So we'll go with the option number B, right? अच्छा, और भी थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे सोचे कि यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है. यहाँ पे था इंट्रासेलुलर एंड यहाँ पे किसके बारे में बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है अबाउट द लुमिनल स्पेस. द लुमिनल स्पेस इज इनसाइड द रेटिकुलम and the extraluminal space that is outside the reticulum, that is nothing but the cytoplasmic part. Okay, so I hope it's clear. We'll going with the option number B. The aquatic plant in which pollination is not carried out by waters. Water pollination is considered as hydrophily, right? वाटर पॉलिनेशन सबसे लीस्ट प्रीफर होता है बाय एंजियोस्पर्म बिकॉज वाटर मोड इज कंसिडर्ड एज ए प्रिमिटिव मोड फॉर गैमेट ट्रांसफर बिकॉज मैनी लोअर ऑर्गेनिज्म एल्गे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट दे यूज टू use water for their transfer of the male gametes. So you will be surprised to know एंजियोस्पर्म में सिर्फ 30 जेनेरा है जो कि हाइड्रोफिली फॉलो करता है, राइट? और उनमें से मोस्टली क्या होते हैं? मोनोकॉट्स. तो कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो हाइड्रोफिली फॉलो करते हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे जोस्टेरा फॉलो करता है, हाइड्रीला फॉलो करता है और वेलिसनेरिया. दे आर वाटर पॉलिनेटेड. बट व्हाट अबाउट वाटर लिली? वाटर लिली डू नॉट शो हाइड्रोफिली. Okay, so there are many plants who live in water. That means their habitat is water, like water hyacinth, water lily, but they prefer to be pollinated either by insects or wind. So in this question we have to see which one is not pollinated by water. I am going with the option number B. What happens when two pyruvic acid form two lactic acids in anaerobic respiration? Pyruvic acid is formed in glycolysis from glucose, right? So glucose 6 carbon converted into 2 molecules of pyruvic acid. How many carbon is there in the pyruvic acid? It is 3 carbon. After that, when it enter into fermentation, such as here it is given as lactic acid fermentation. So 2 pyruvic acid convert into 2 molecules of lactic acid. Again, lactic acid is also 3 carbon compound. So the question is, what has been used or formed during the process? So in glycolysis, glucose to pyruvic acid, we got 2 ATP and 2 NADH.
H plus, that is what produced in glycolysis. But in case of this lactic acid fermentation, when pyruvic acid convert into lactic acid, there is a use of 2 molecules of NADH. So it will be 2 molecules of NADH H plus will be used up, okay, and we know 1 NADH is equivalent to 3 ATP. So because we are using 2 molecules of NADH, so ultimately how many ATP will be used? That is 6 ATP, 6 ATP is lost. So I am going with the option number D. Given below is the sequence of the processed mRNA ready for translation. So one processed mRNA is given, right? So we know actually in eukaryote first DNA is transcribed into hnRNA and then hnRNA undergoes processing to form mRNA. Now every 3 nitrogen bases act as a codon, and who read the codon? That is tRNA. So the question is asking that how many tRNA molecule are required to translate this mRNA. Okay, so let's see that. AUG, right? CUA, UAC, CUC, CUU, UAU, CUG and UGA. So all these are codons. Now to read each codon, there is one tRNA is required which is having anticodon. And what is anticodon? The bases complementary to the codon. तो हर एक कोडन के लिए एक अलग सा tRNA यूज होगा. तो हमें काउंट करना है कितने कोडन्स है यहाँ पे, तो उतने ही tRNA होंगे. तो लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7. I got 7. But what about this? UGA. UGA is stop codon. और स्टॉप कोडन के लिए कोई भी tRNA नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग tRNA काउंट नहीं करेंगे. सो व्हाट इज आवर आंसर? वी गॉट 7 tRNA. आई एम गोइंग विथ ऑप्शन नंबर सी. What is the role of gibberellins in plant growth and development? Gibberellin एक plant hormone है. We can say it is one of the PGRs, right? Plant growth regulators. Total there are 5 types of PGRs, and who are they? These are auxin, gibberellin, then cytokinin, abscisic acid and ethylene, right? So they are asking about the function of gibberellin. Gibberellin जो है, gibberellin causes elongation of the internode, जिससे कि stem elongation होता है. Even gibberellin का जो discovery है, वो भी उसके elongation function से जुड़ा हुआ है. We know about the Beckene disease of the rice seedling, जहाँ पे rice seedlings को abnormally tall देखा गया. That is because of the higher amount of gibberellin. Yes or no? So we know that gibberellin का function होगा stem elongation. Now another interesting fact is, because when stem is elongating very fast, then plant can finish the vegetative growth also quickly, and as soon as the vegetative growth is over, then plant automatically enter into the reproductive phase, and then it will start flowering. So can gibberellin cause early flowering? That is also correct, right? So here we can see the options. Let's see the options. Gibberellin helps in the lateral shoot growth. क्या जिबरेलिन लेटरल शूट ग्रोथ के लिए हेल्प करता है या एडवेंटेशियस शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है? नो, द आंसर इज नो. तो हु डज दैट? इट इज डन बाय साइटोकाइनिन. लेटरल शूट ग्रोथ वही हार्मोन करता है जो ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस को, राइट? हु कैन ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, ओके. और इवन वी नो कि साइटोकाइनिन जो है हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शूट फ्रॉम द कैलस. तो ये जो फंक्शन लिखा गया है, इट इज फॉर साइटोकाइनिन, नॉट फॉर जिबरेलिन. promote stem elongation and early flowering. Of course, I already talked about it कि ये जिबरेलिन का फंक्शन है. Accelerate abscission in flowers and fruits. This you can find in the function of ethylene and mainly as a commercial form in the aqueous solution, that is एथेफोन. ओके, सो एथेफोन हम लोग यूज करते हैं टू एसिलरेट द एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, जिसको हम लोग थिनिंग भी बोलते हैं, है ना? हमने पढ़ा होगा थिनिंग इन कॉटन, चेरी एंड वालनट वेयर वी यूज एथेफोन. तो ये भी जिबरेलिन का फंक्शन नहीं है. ओके, ऑल द अबव तो है ही नहीं. सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर बी. Electron energy is used to drive protons against concentration gradient across thylakoid membrane. ओके, अच्छा थोड़ा सा जो है हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को. यहाँ पे लिखा है कि
इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज यूज्ड, ओके, एनर्जी यूज किया गया है टू ड्राइव प्रोटॉन्स against concentration. So whenever against concentration, that means proton have been pumped, it is pumping of proton from low concentrated area to the high concentrated area, and that's why in this process energy is used. So it is active transport. So क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि प्रोटॉन का जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे, अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ओके, सो ये कहाँ से कहाँ होगा, ओके, उसके लिए हमें थोड़ा सा जो है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जानना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम सोचे कि ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, दिस इज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड दिस साइड इज स्ट्रोमा and this side is the thylakoid lumen, okay. So initially the stroma will have low concentration and lumen will have high concentration, ठीक है। So that we already know, who have studied ETS, we know that during electron transport a such condition is created where lumen has high concentration of hydrogen ions and stroma has low concentration of hydrogen ions, okay, and this membrane has lots of energy because of the electron transport. और इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक पंप यूज किया जाता है जो कि है साइटोक्रोम B6F, जिसके थ्रू हाइड्रोजन को पंप किया जाता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ओके। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, आवर आंसर विल बी स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। और जब ये पंपिंग होता है उससे ल्यूमेन में हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है, जिससे क्या क्रिएट होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स वापस हाइड्रोजन को वापस भेजता है फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द F0 F1 कॉम्प्लेक्स। और अभी जब हाइड्रोजन वापस जाता है इट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ओके, एंड एज ए रिजल्ट द एनर्जी इज रिलीज्ड and that energy is utilized by F1, which is the ATP synthase, okay. It will bind ADP and phosphate by utilizing this energy and ultimately it will form the ATP. तो ये थोड़ा सा जो है हमने ETS का कुछ सेक्शन जो है हमने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, क्वेश्चन पैसिव ट्रांसपोर्ट का नहीं था, क्वेश्चन था एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, इट इज फ्रॉम स्ट्रोमा टू द ल्यूमेन, ओके, आई होप इट्स करेक्ट। सो आई विल गो विद द ऑप्शन सी, स्ट्रोमा टू द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। A cell in prophase of mitosis can be distinguished from a cell in prophase 1 of meiosis. So here is a question to differentiate the prophase of mitosis and prophase 1 of mitosis. Okay, let's see that. यहाँ पे लिखा है पहले ऑप्शन में the presence of only half as many chromosome in the meiotic cell. तो क्या prophase 1 और प्रोफेस ऑफ माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर का कोई डिफरेंस होगा, नहीं होगा, क्योंकि मियोसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन है, लेकिन वो रिडक्शन कब होगा, एट द एंड ऑफ द मियोसिस, राइट। लेकिन प्रोफेस 1 जो है, प्रोफेस 1 इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मियोसिस 1, तो वहाँ पे हमें कोई रिडक्शन नहीं दिखेगा, सो इट इज ए रॉन्ग। द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड इन द मियोटिक सेल नॉट इन द माइटोटिक सेल, क्या बोला गया है कि मियोटिक सेल में टेट्राड फॉर्म होता है जबकि माइटोटिक में नहीं होता। अभी टेट्राड क्या है, जब प्रोफेस 1 होता है, ठीक है, प्रोफेस 1 वी नो प्रोफेस 1 हैज 5 सब डिविजन्स, व्हाट आर दे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। जब जाइगोटीन फेज में होमोलोगस क्रोमोसोम जो है दे अंडरगो पेयरिंग, दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ साइनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि दो क्रोमोसोम, दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ ग्रुप बनाते, एक साथ पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें कितना क्रोमोसोम दिख रहा है, हमें दिख रहा है 2 क्रोमोसोम्स एंड दिस 2 क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इट विल बी नोन एज बाइवेलेंट। अगर हमें पूछे कि कितने क्रोमेटिड्स है यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स है, तो इसी बाइवेलेंट क्रोमोसोम को अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इट विल बी नोन एज टेट्राड्स। तो टेट्राड्स कहाँ बनता है, इन द जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1। क्या ऐसा टेट्राड माइटोसिस में बनता है, नो, द आंसर इज नो। तो मतलब जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये करेक्ट डिफरेंशिएशन है। देन ऑल्सो लेट्स रीड द सी ऑप्शन, द प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस
as many chromosomes in the meiotic cell. तो as I told already, earlier also, there is no difference in the chromosome. ऐसा chromosome number का कोई difference जो हम नहीं दे सकते. So I will not give this one. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन रेटिकुलम इनटू कम्पैक्ट क्रोमोसोम, ये तो कोई भी प्रोफेस में होता है, चाहे वो माइटोसिस का प्रोफेस हो या मियोसिस का. प्रोफेस में हमेशा ही क्या होता है, कंडेंसेशन होता है. ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा. विल गो विद ऑप्शन नंबर बी. Okay, 108, match the following. So first one is given as polygenic inheritance. In polygenic inheritance, many genes have a additive effect or you can say quantitative effect to give only one character. तो यहाँ पे polygenic inheritance का example हम देंगे स्किन कलर इन ह्यूमन. ठीक है, तो यहाँ पे 1 मुझे मिल गया डी, स्किन कलर इन ह्यूमन. इसमें 3 अलग अलग जीन्स होते हैं, ए, बी एंड सी. सेक्स लिंक डिजीज, दैट आई विल गो विथ कलर ब्लाइंडनेस. Color blindness is X-linked, that is sex-linked. Pleiotropy, that is one gene having many effects. यहाँ पे pleiotropic effect कौन दिखा रहा है? That is sickle cell anemia. So 2 we got C and 3 we got A. Last one is male heterogamity. It will be shown by XO and XY. जहाँ पे जो मेल है वो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनाते हैं, है ना. तो यहाँ पे XO टाइप हमें कहाँ दिखता है, हमें ग्रास ऊपर कॉकरोच में दिखता है, और XY टाइप हमें ह्यूमन में ड्रोसोफिला में दिखता है. तो यहाँ पे हो गया 4, जो है हमने क्या कर दिया, 4 हो गया B. तो DCAB कहाँ पे है, DCAB विल गो विद द ऑप्शन नंबर D. Okay, 109, match Coulomb with Coulomb 2 and select the correct option. So first one is, here we can see the organelles are given along with some of the function. So mitochondria, everyone knows the function of mitochondria is respiration. So it is A2. Vacuoles will be good for storage. प्लांट में जो सेफ वैक्यूल होता है ये तो ऑलमोस्ट और यू कैन से मोर देन 90% प्लेस ऑक्यूपाई करके रखता है, तो ऑफ कोर्स स्टोरेज होगा. ग्रेना, दैट इज पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, राइट, व्हेन द थाइलाकोइड स्टैक्स वन ओवर अदर, सो इट इज रिलेटेड विद द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं हम लोग. बी हो गया 4 और सी हो गया हमारा 1. डी, गोल्जी अपैरेटस का क्या फंक्शन होगा, ये होगा सिक्रेशन. तो गोल्जी अपैरेटस जो पैकेजिंग करता है, मॉडिफाई करता है चीज़ों को, और वो मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो है वो वेसिकल्स में डाल के या तो इंट्रासेलुलर या तो एक्स्ट्रा सेलुलर उसको सिक्रेट करता है, राइट. सो गोल्जी अपैरेटस के साथ हम जाएंगे सिक्रेशन. तो यहाँ पे ए 3 4 1 2 3 4 1 2, आई एम गोइंग विद द ऑप्शन ए 3 4 1 2. 110, furrowing or cleavage do not occur during cell division in a plant since. Okay, so furrowing or cleavage actually ये animal cells में होते हैं during cytokinesis, right, during cytokinesis. And in this step we can see that after telophase, जब 2 डॉटर न्यूक्ली बन चुका है, सेल मेम्ब्रेन में एक फ्यूरो और यू कैन से एक कैविटी फॉर्म हो जाता है, राइट. और ये कैविटी जो है बाउंड्री से सेंटर की तरफ बढ़ता रहता है. धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये कैविटी और ज़्यादा डीप होता जाएगा और एक टाइम पे ये मेम्ब्रेन एक दूसरे को टच कर लेगा और ये जो सेल है ये डिवाइड हो जाएगा. ये कहाँ पे देखते हैं हम लोग, एनिमल सेल में देखते हैं. ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि सेल वॉल बहुत हार्ड होगा, टफ होगा, वी कैन नॉट हैव दैट फ्यूरो, राइट. सो प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल होता है, सो प्लांट सेल कैन नॉट शो दिस काइंड ऑफ साइटोकाइनेसिस. रेदर प्लांट सेल में कैसा होगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं. तो प्लांट सेल में after telophase you can say there are some phragmoplasts, these are some remaining of the spindle fiber जहाँ से सेल प्लेट फॉर्मेशन शुरू होता है. ठीक है, तो यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन शुरू होता है सेंटर से और धीरे धीरे ये जो है पेरीफेरी तक बढ़ता जाता है. तो यहाँ पे ये बाद में बन जाएगा क्या, मिडिल लेमिला, और मिडिल लेमिला के ऊपर फिर बनेगा प्राइमरी वॉल. तो जब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है इसको कहते हैं सेल प्लेट मेथड, और एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है ये होता है सेल फ्यूरो मेथड. इसको हम लोग सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, राइट. सो लेट्स सी द ऑप्शंस हियर. ऑप्शन ए पे दिया गया है स्पिंडल फाइबर्स आर एब्सेंट. नो, दिस इज नॉट द रीजन, राइट. सेल डिविजन इज नॉट रिक्वायर्ड कंटिन्यूअसली, दिस इज ऑल्सो नॉट रेलिवेंट.
इट इज सराउंडेड बाय ए रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। हाँ, प्लांट सेल में ये जो होगा सेल वॉल होगा, इसकी वजह से ही फ्यूरो मेथड अप्लाई नहीं होता। Karyokinesis not followed by cytokinesis, it is not relevant. Okay, so here we are going with the option number C. One single maize root apical meristem can give rise to how many new cells per hour? ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो एक साफ टॉपिक है ग्रोथ इज मेजरेबल, उसमें बहुत सारे ग्रोथ के पैरामीटर्स दिया गया है कि ग्रोथ को हम कैसे कैसे मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि नंबर से मेज़र कर सकते हैं, एरिया, वॉल्यूम, साइज, ड्राई वेट, फ्रेश वेट, राइट। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं उनमें से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग ग्रोथ को मेज़र करते हैं बाय द नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 17,500। ओके, सो आई एम गोइंग विद द ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, रीड फ्रॉम द बुक। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड दैट इज ट्रायस फॉस्फेट, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ट्रायस फॉस्फेट, ठीक है, फ्रॉम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब सिंपल, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लिखा है कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, PgAl, जिसको हम लोग और कैसे जानते हैं, G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, राइट, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको फिर हम लोग ट्रायस फॉस्फेट भी बोल रहे हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रिएक्शन अबाउट? ओके, ऑफ कोर्स समझ आ गया होगा। ये C3 साइकिल का स्टेप है और हमें पूछ रहा है कि ये जो स्टेप है ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। C3 साइकिल में, जिसको हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड RuBp, okay, carbon dioxide and RuBp converting into 3PgA, okay, 2 molecules, because carbon dioxide में 1 कार्बन है, RuBp है 5 कार्बन एंड 3PgA है 3 कार्बन। ये कौन सा स्टेप हो गया, कार्बोक्सिलेशन। अभी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट कन्वर्ट इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जहाँ पे ATP यूज होता है, और फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, द ट्रायोस फॉस्फेट, दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ये सेकेंड स्टेप है C3 साइकिल का। और व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, दैट इज रिडक्शन, राइट। और इस रिडक्शन फेज में ही आगे जाके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, दैट इज द गोल ऑफ C3 साइकिल। सो फॉर दिस क्वेश्चन विल गो विद द ऑप्शन नंबर C, राइट। इट वाज वेरी इजी। ए TS ऑफ डाइथेकस एंथर शोज, व्हाट डज द TS ऑफ डाइथेकस एंथर शोज? तो एंथर में 4 वॉल जो होते हैं, है ना, टोटल 4 वॉल्स आर देयर। द आउटर मोस्ट वॉल इट इज एपिडर्मिस, नेक्स्ट लेयर इज एंडोथेसियम, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर्स, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है टेपेटम, जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू के सबसे करीब है, राइट। स्पोरोजेनस टिश्यू जिससे क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है, फिर माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन बनते हैं, द मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे अगर हमें ये डायग्राम पता है, हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। लेट्स रीड द ऑप्शंस, राइट। एंडोथेसियम इनर टू द मिडिल लेयर, क्या एंडोथेसियम इनर टू मिडिल लेयर है? नो, एंडोथेसियम इज आउटर टू द मिडिल लेयर, ओके, सो दिस गोस रॉन्ग। फिर टेपेटम जस्ट बिलो एंडोथेसियम, tapetum just below endothelium, no, tapetum just below the middle layer, this is also wrong. Tapetum below an epidermis, that is wrong. Middle layer is between endothelium and tapetum, yes, middle layer is between endothelium and tapetum, so option D is correct. What does it mean if RQ is less than 1 in respiratory metabolism? This is a very interesting question. What is RQ? RQ is respiratory question, and what is the formula of RQ? That is volume of CO2 evolved divided by the volume of oxygen consumed. Okay, so now understood that if CO2 and oxygen is equal, then RQ value will be 1. Do you understand that? CO2 oxygen, if it is equal, as in case of carbohydrate 6 CO2 6 O2, तो यहाँ पे RQ वैल्यू क्या हो जाएगा 1। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इट शुड बी लेस देन 1। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, नो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के लिए RQ वैल्यू कितना है 1 है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है।
ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक एसिड में RQ वैल्यू मोर देन 1 होता है, मोर देन 1 होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड मोर ऑक्सीजन देन द अमाउंट ऑफ CO2, मतलब CO2 कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है। अभी देखो ऑक्सीजन तो नीचे आता है, राइट, तो अगर ऑक्सीजन का वैल्यू ज़्यादा है तो RQ वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 1। सो ऑफ कोर्स C इज द करेक्ट आंसर। एक बार डी को भी देख लो, द ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड लेस ऑक्सीजन देन द अमाउंट ऑफ CO2, तो यहाँ पे CO2 ज़्यादा है और ऑक्सीजन कंजम्पशन कम है, इसमें RQ वैल्यू क्या हो जाएगा, मोर देन 1, जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स में होगा, राइट। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, गो विद द ऑप्शन सी। Which of the following is incorrect sentence regarding Mendel's experiment? Okay, Gregor Johann Mendel, that is the father of genetics, उनके regarding ये question है। तो Gregor Mendel conducted hybridization experiment on garden pea, right, Pisum sativum, for 7 years. It is correct। और 7 years का duration अगर हम देखें, it is 1856 to 1863. During Mendel investigation into inheritance, it was for the first time that the statistical analysis and mathematical logic were applied to the problems in biology. It is correct. Okay, read NCERT. These lines are directly given in the book. Okay, so it is correct because Mendel was a scholar of statistics, mathematics and even natural history, which is modern day botany. Okay, so and it is the first time someone used those knowledge into the biological concepts. Okay, so number C लिखते हैं, his experiments had a small sampling size. No, this is wrong. Mendel used very large sampling size and that makes Mendel's findings much more accurate and reliable. तो ये C ऑप्शन गलत हो गया और हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, तो हम जाएंगे ऑप्शन C, देख लो, it is C only. 116, a distinctive feature of the lysosome is that it has, ठीक है, लाइसोसोम का एक डिस्टिंक्ट फीचर, लाइसोसोम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सुइसाइड, सुइसाइडल बैग, ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, that are digestive enzymes, protease, amylase, lipase, right, और they are very functional in acidic pH, right। तो हमेशा याद रखना है हमें, एसिडिक पीएच में ही लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव होते हैं, फंक्शनल होते हैं, और पीएच ऑलमोस्ट होता है 4.5 to 5, एंड for the cytosolic pH, or you can write the pH of the cytoplasm, it is almost 7 to 7.5. That means the pH of the lysosome, it is less than the pH of the cytosol. So here we can see a higher pH than the cytoplasm, that is wrong. Option B, lower pH than the cytoplasm, correct. Reduced hydrolase activity, no, just now I told it has almost all type of hydrolytic enzymes. Double membrane, no, because lysosome is a single membrane bound organelle. So here we'll go with the option number B. Okay, 117, assertion, each molecule of ribulose 1,5-bisphosphate fixes one molecule of CO2. To fix one molecule of CO2, there is a need of 1 molecules of ribulose 1,5-bisphosphate, it is correct, and it is the carboxylation reaction that lead to the formation of 2 molecules of phosphoglyceric acid. So I will tell assertion is correct. Reason, 3 molecules of NADPH and 2 ATP are required for fixation of 1 molecule of CO2. Okay, so here we can see here, let's see, total to produce 1 molecule of glucose, the Kelvin cycle must run 6 times, and for that we use 6 molecules of carbon dioxide. Okay, and what is the total cost of this C3 cycle? 18 ATP. 18 ATP यूज होता है और 12 NADPH यूज होता है, ठीक है। तो अगर ये कैलकुलेशन 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना ATP चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय 6, how much we'll get? We'll get 3 ATP and we'll get 2 NADPH, ठीक है। अभी रीजन पढ़ लेते हैं हम लोग, रीजन में क्या लिखा है,
3 molecules of NADPH. 3 molecules है क्या? No, it should be 2 molecules and it should be 3 ATP. तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था और यहाँ पे 2. तो reason is wrong. तो कौन से ऑप्शन से जाएंगे? If assertion is true but the reason is false. Which of the following characters of Drosophila is not correctly depicted as suitability for genetical studies? Drosophila is very popular in the genetical study और Drosophila जो है ये मॉर्गन ने भी यूज़ किया था for the study of linkage. ठीक है, तो वहाँ पे हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हुआ है Drosophila का कि क्यों Drosophila बहुत ज़्यादा suitable है. So let's see which are the correct options. They could be grown on simple synthetic medium in laboratory. ये करेक्ट है, easily grow हो जाता है. Single mating produces many progenies. Okay? तो ये जो ऑप्शन हो गया रॉन्ग हो गया. यहाँ पे लिखा है सिंगल मेटिंग produces few number of progeny flies. No, they produce many progenies. They complete their life cycle in about 2 weeks. Yes, very short lifespan. So the result of the cross you can get very fast. Male and female flies are easily distinguishable. Okay, so यहाँ पे लिखा है not easily distinguishable. That is wrong. They have many types of hereditary variations that can be seen with low power microscope. हाँ, ये भी करेक्ट है. बहुत सारे contrasting characters होते हैं ड्रोसोफिला में. तो यहाँ पे दो ऑप्शन जो है यहाँ पे wrong दिया गया है. And what we have to see? Not, right? That is wrong option. What are the wrong option? B and D. So we'll go with the option number A, B and D. Genetic self-incompatibility tends to increase. What is genetic self-incompatibility? It is a type of outbreeding device when the cell pollen fall on the stigma of its own flower, it fail to germinate. Self-incompatibility, self-sterility. Okay, but if that pollen fall on some other stigma, some cross stigma, then it will germinate. And if some cross pollen fall on this stigma, this cross pollen, the foreign pollen can germinate and form the pollen tube. So why this has been done? क्यों होता है outbreeding device? To help in the cross pollination, to encourage outcrossing, encourage variation. Okay, तो यहाँ पे genetic self incompatibility किस चीज़ को increase करता है, encourage करता है? तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? Outcrossing, cross pollination. जबकि inbreeding को ये demotivate करता है, discourage करता है. ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन तो है ही नहीं, पोलन डिस्पर्सल ये तो कुछ है नहीं. ठीक है ना, नॉट रिलेवेंट. What is the major reason that glycolysis is not as energy productive as respiration in mitochondria? Why glycolysis is not that much energy producing? So for that, first of all we should know what is glycolysis, right? In glycolysis, glucose is converted into pyruvic acid. And what is the result of this? 2 molecules of ATP and 2 molecules of NADH plus. ठीक है, तो ये जो 2 ATP है that is the result of the SLP जो कि डायरेक्ट एनर्जी है और सेल उसको इमीडिएटली यूज़ कर सकता है. सो अल्टीमेटली इस 2 ATP को ही हम लोग क्या मान सकते हैं? द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. क्योंकि अगर हम लोग इसको देखें 2 NADH, ओके, दिस 2 NADH है ना, इट कैन नॉट गिव द सेल इमीडिएट एनर्जी और इसको वापस ETS में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. इट हैज़ टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन इन द ETS एंड देन ओनली इट विल बी कन्वर्ट इनटू ATP. और ETS कहाँ होता है? ETS होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड में अभी भी 3 कार्बन है, राइट? मतलब पायरुविक एसिड आगे जाके और ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है. इसीलिए हम देखते हैं कि जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम A. कहाँ पे हो रहा है? मैट्रिक्स में हो रहा है. और इसका प्रोडक्ट भी क्या है? 2 NADH+. यस, तो ये भी, इसका भी ATP कहाँ बनेगा? ETS में बनेगा, क्रिस्टी में बनेगा. उसके बाद शुरू होता है क्रेब साइकिल. क्रेब साइकिल में एनर्जी स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो क्रेब साइकिल में टोटल 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन होगा. आउट ऑफ दिस 4 ऑक्सीडेशन 3 ऑक्सीडेशंस विल हैव NADH+ and 2 NADH each time. So total it will be 6 NADH, right? Then one oxidation will produce FADH2. Again 2 FADH2 will be produced and there is one SLP where it get 2 molecule of GTP.
तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि पायरुविक एसिड में जो कि ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारा एनर्जी होता है, राइट, और उसको ग्लाइकोलाइसिस में पूरी तरीके से ब्रेक किया ही नहीं गया है, इट इज़ नॉट ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और ये एनर्जी हमें कहाँ मिलेगा, जब वापस हम लोग पायरुविक एसिड को और ज़्यादा ऑक्सीडाइज करेंगे, और ज़्यादा ब्रेक करेंगे, और वो कहाँ पे होगा, वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट कम होता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द टॉपिक नाउ, अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ लेट्स फाइंड आवर ऑप्शन। तो फर्स्ट वन इज गिवन, NAD plus is regenerated by alcohol or lactate production. ओके, जो NADH H प्लस ग्लाइकोलाइसिस में बनता है वो वापस यूज हो जाता है ना, फर्मेंटेशन में, और वापस क्या जनरेट हो जाता है, NAD प्लस। ओके, विदाउट द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द ETS, मतलब ETS के मदद के बिना ही यहाँ पे NAD प्लस रीजेनरेट हो जाता है, और ये NAD प्लस वापस ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन क्या इसका रीज़न, क्या ये इस चीज़ का रीज़न है कि क्यों ग्लाइकोलाइसिस में ज़्यादा एनर्जी नहीं बनता है ना, ऑफ कोर्स नहीं है। सो आई विल नॉट गो विद द ऑप्शन नंबर ए। It is the pathway, that means glycolysis is the pathway common to fermentation and aerobic respiration. ये भी करेक्ट है, ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है, लेकिन ये भी इस चीज़ को डिफाइन नहीं करता। It does not take place in a specialized membrane bound organelle, that is also correct. Statement is correct. Glycolysis occur in cytoplasm, does not occur in any specialized organelle, but again it is not the reason why it is producing less energy. समझ आ रहा है ना। तो अभी ऑप्शन डी देखते हैं हम लोग। पायरुवेट कैन बी मोर ऑक्सीडाइज्ड, it still contains much of the energy from glucose which is done in mitochondria. ओके, जो कि बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में उसको फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी कंपेयर टू ग्लाइकोलाइसिस। ओके, क्लियर? Okay, again another match the organelle with the nature of membrane they contain, that is 1-to-1 question, list 1, list 2. List 1 में what kind of membrane does the mitochondria has, that is double membrane. So A I am going with 3. Lysosome, it has single membrane, so B is 1. Ribosome, that is without membrane, so C is 4. And nucleus, it is double membrane विथ पोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूक्लियस का जो एनवेलप है ना, दैट हैज़ न्यूक्लियर पोर्स, माइन्यूट पोर्स, सो दैट देयर इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म. सो वी गॉट आवर आंसर, इट इज 3142. आई विल गो विद दिस ऑप्शन बी, 3142. Okay, 122. The hormone responsible for enhancement of the respiration rate of fruits, thereby leading to early ripening. When you see a ripening, fruit ripening, that means ethylene. And during ripening process, when the ethylene secretion increases, it can increase the rate of respiration. और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक. और जो फ्रूट रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक शो करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट, जो कि बहुत सारे हमारे कॉमनली नोन फ्रूट्स हैं, जैसे कि बनाना, मैंगो, एप्पल, पपाया, ऑल दीज आर क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे. The probability of having girl child with blood group O when the parents have blood group A and B with heterozygous genotype. Okay, तो यहाँ पे एक प्रोजेनी है जिनका ब्लड ग्रुप O होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमें पूछा गया है, जबकि पेरेंट्स का जो फिनोटाइप है वो है A ब्लड ग्रुप एंड B ब्लड ग्रुप. जीनोटाइप कैसा है, हेट्रोजाइगस. तो कैसे लिखेंगे जीनोटाइप यहाँ पे, IA then IBI. Okay, what are the probability of children? So IA, IB, it will be AB blood group, IA and I, A blood group child, IBI, B blood group, and II will be O blood group. So can you see if the parents have heterozygous A and B blood group, there are the possibilities of all 4 types of blood groups in the progeny, and out of 4 individual, how many is having O blood group? 1. So almost it is 1/4, that is 25%. I will go with the option number C. Which of the following events does not occur in anaphase 2? Anaphase 2, meiosis,
meiosis II. Second meiosis, that is equational cell division. Okay, first of all we should know what is the condition in the metaphase II. In the metaphase II, you can see the chromosomes are arranged based on their centromere, and they are attached to the spindle fibers, okay, and these spindle fibers are attached to the kinetochore. That is the condition of the metaphase II. What happened now in the anaphase II? The spindle fibers start to contract, okay, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होने लगते हैं और उसका प्रेशर किस पे आता है? सेंट्रोमियर पे. सेंट्रोमियर ब्रेक्स, राइट, एंड यू कैन सी द सिस्टर क्रोमेटिड्स और यू कैन सी द डॉटर क्रोमेटिड्स मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, राइट. तो ये सारे जो होंगे कंडीशन, ये सारे जो इवेंट्स होंगे वो एनाफेज 2 में होंगे. लेट्स सी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम. क्या कंडेंसेशन होता है एनाफेज में? नहीं, प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है. तो एक्चुअली इट इज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिन रेटिकुलम इनटू क्रोमोसोम्स. और कंडेंसेशन कब होता है? प्रोफेज में होता है. तो ये तो पहला ऑप्शन ही जो है रॉन्ग हो गया. कंट्रैक्शन इन स्पिंडल फाइबर्स होगा, पोलवर्ड मूवमेंट होगा और डिविजन ऑफ सेंट्रोमियर होगा. तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है. हमें कौन सा देखना था? डज नॉट. तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ. ऑप्शन ए, दैट इज आवर करेक्ट आंसर. The pistil of paperware. What is the pistil of paperware shows? Pistil of paperware is multicarpellary syncarpus. What is the meaning of multicarpellary? Many carpels, many pistils, and syncarpus, that means it is united. तो direct question है, right? अच्छा, monocarpellary superior. monocarpellary is one carpel, superior ovary means hypogynous. जिस फ्लावर में गाइनोशियम का पोजीशन सबसे ऊपर हो, above all the floral appendages. तो ये तो होगा ही नहीं. Multicarpellary apocarpus. Apocarpus मतलब not united. You can see all are united. Can you see that? So of course it is wrong. Pentacarpellary apocarpus. Pentacarpellary means 5 carpels. Okay, apocarpus not united. So it is also wrong. I'll go with the option number B. Which of the following statements regarding C4 plant is false? C4 plants जो है वो एडाप्टेड है टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन. फोटो रेस्पिरेशन एक हार्मफुल प्रोसेस है और C4 प्लांट ट्रॉपिकल प्लेस में रह के भी वो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड कर सकता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ स्पेशल एनाटॉमी दैट इज कॉल्ड क्रांज एनाटॉमी. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें जानना पड़ेगा बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन. लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन. लीव्स दैट फिक्स CO2 हैव 2 सेल टाइप. यस, क्रांज एनाटॉमी जो लीफ में होते हैं उसमें 2 सेल टाइप होते हैं. एक होता है मेसोफिल और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा बंडल शीट. ओके, तो ये तो हमें करेक्ट मिल गया. देखो करेक्ट नहीं ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है. द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑकर्स इन मेसोफिल. पहला कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है? मेसोफिल में होता है. एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं. इट इज CO2 पेप. पेप क्या होता है? फॉस्फोइनल पाइरुवेट, है ना. और यहाँ पे बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ये मेसोफिल में होता है, ये भी करेक्ट है. Calvin pathway does not take place in the mesophyll, correct, but does only in bundle sheet. हाँ, Calvin cycle जो C3 cycle है वो bundle sheet में होता है, mesophyll में नहीं होता. क्यों? क्योंकि bundle sheet में ही कौन सा एंजाइम होता है? रूबिस्को. और केल्विन साइकिल में मेन एंजाइम जो चाहिए कार्बोक्सिलेशन में वो होगा रूबिस्को. रूबिस्को बंडल शीट में है, सो केल्विन साइकिल विल ऑकर इन द बंडल शीट ओनली, नॉट इन द मेसोफिल. ओके. Number D, the primary carbon dioxide acceptor is a 5 carbon molecule. That is wrong. जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और ये 3 कार्बन कंपाउंड है. तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया. हमें तो रॉन्ग ही ढूंढना है. विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी. Which of the following phenomenon leads to the specification of function of dedifferentiated cell? You should understand dedifferentiated का मतलब है मेरिस्टेम. और मेरिस्टेम सेल का कोई फंक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता क्योंकि मेरिस्टेम सेल का एक ही फंक्शन होता है, वो है डिवाइड करना. तो जब कोई मेरिस्टेमेटिक सेल स्पेसिफाइड होता है, कोई फंक्शन चूज करता है, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है परमानेंट टिश्यू. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो अभी हम सोचेंगे कि क्या डिफरेंशिएशन आंसर होगा? नहीं, क्योंकि ये जानने के लिए हमें पहले से जो है समझना पड़ेगा. सबसे पहले अगर हम शुरू करें फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, तो प्राइमरी मेरिस्टेम
सिर्फ डिवाइड कर रहा था, उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं था। फिर ये डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। देखो प्राइमरी मेरिस्टेम ने डिफरेंशिएशन किया तो क्या बन जाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। फिर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के सेल जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, प्राइमरी परमानेंट के सेल, उनमें से कुछ सेल वापस रिगेन करता है सेल डिवीजन, वापस मेरिस्टेम बनता है। अभी वापस अगर मेरिस्टेम बन रहा है, इसको प्राइमरी तो नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलना पड़ेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये यहाँ से शुरू हुआ है। अगर अभी डी डिफरेंशिएटेड सेल वापस से कोई फंक्शन चूज कर ले, वापस से डिफरेंशिएशन हो जाए, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, क्या कहा मैंने, वापस से डिफरेंशिएशन कर दे तो इसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन, जिससे कि क्या बनेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो हमारा आंसर क्या होगा, रीडिफरेंशिएशन। विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। If a cross is made between two individuals each having genotype BB, okay, there are two individuals of genotype B and B. Out of this, one has dominant trait, okay, what is the probability that the second offspring will exhibit recessive trait? मतलब अगर कोई पेरेंट्स में ऐसा जीनोटाइप होगा तो जो बच्चे हैं उसमें डोमिनेंट ट्रेट्स भी आएंगे और रिसेसिव भी। क्यों, क्योंकि ये लोग तो हेटेरोजाइगस हैं, एंड क्योंकि ये लोग हेटेरोजाइगस हैं तो यहाँ पे प्रोजेनी जो होगा इट विल हैव डोमिनेंट, it can have dominant trait also and it can have recessive trait also, okay. How much is the probability to have a recessive trait? तो ये तो हमें पता ही है, तो मेंडेलियन क्रॉस है, जब हम लोग F1 हेटेरोजाइगस को क्रॉस करते हैं we get 3:1, जहाँ पे 75% प्रोबेबिलिटी होता है ऑफ चिल्ड्रन हैविंग डोमिनेंट फिनोटाइप और 25% प्रोबेबिलिटी होता है प्रोजेनी हैविंग द रिसेसिव फिनोटाइप। सो हियर आई एम गोइंग विद द ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1/4 लिखा है, दैट इज 25%, ओके। अच्छा, अगर करके भी देखते तो क्या मिलता, हमें ऐसे मिलता है ना, फिर ऐसे मिलते तो 1 ऐसे होता, 2 हेट्रोजाइगस होता और 1 होता होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये तीनों जो है फिनोटिपिकली तो डोमिनेंट होता और ये फिनोटिपिकली क्या होता, रिसेसिव ट्रेट होता। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, वी नो द डायग्राम इज ऑफ सेल साइकिल, और यहाँ पे जो x है वो होगा G1, y होगा S और Z क्या होगा G2। सो क्वेश्चन हमें x के रिगार्डिंग पूछा गया है तो हम लोग G1 के रिगार्डिंग जो है आंसर देंगे, ओके। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग, द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। क्या G1 में सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं? नो, बिकॉज G1 में RNA सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल ग्रोथ सब होगा, तो इट इज़ नॉट इनएक्टिव। द कंटेंट ऑफ DNA इज हाफ इन कंपेरिजन टू S फेस, ये करेक्ट है। G1 के बाद S फेस में डुप्लीकेशन होता है, दैट मीन्स जब हम लोग G1 में देखते हैं, G1 chromosome has one chromosome having one chromatid only, that is in the G1, but in the S phase this chromosome will duplicate and one chromosome will have two chromatid, ठीक है। तो अगर G1 में हम बोलेंगे कि DNA कंटेंट 2C था तो S फेस में कितना हो जाएगा 4C, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। The number of chromosome is half in comparison to the S phase। क्या क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है? नो, क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज रिमेन सेम। अगर इसको भी हम लोग एक क्रोमोसोम बोल रहे हैं, इसको भी एक ही क्रोमोसोम बोल रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। लास्ट फॉर मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, ये रॉन्ग है। ये जो मोर देन 95% है, इट इज इंटरफेस, जो कि इन सबको मिला के होता है, माने G1 S G2 सबको मिला के क्या होता है, इंटरफेस, दैट लास्ट फॉर मोर देन 95%। लेकिन यहाँ पे G1 के बारे में है तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर बी। In C4 plants, bundle sheet cells. So what are the qualities of the bundle sheet cells in the C4 plants that exhibit Kranz anatomy? तो of course यहाँ पे करेक्ट देखना है हमें, कौन सा होगा, क्या लिखा है, have thin walls, no, thick walls होते हैं bundle sheet में, to facilitate, not to facilitate, it is impervious for gaseous exchange, do not allow gaseous exchange, wrong. Have large intercellular space, no, have no intercellular space. Have a high density chloroplast, it is correct. Bundle sheet have high density of chloroplast, are rich in PEP carboxylase, wrong.
बंडल शीट हैज रूबिस्को, मेसोफिल इज रिच इन पेप कार्बोक्सिलेज जिसको हम लोग पेप केस बोलते हैं. तो here we are going with the option C. Male offspring of which of the following couples have the highest chance of hemophilia? Hemophilia सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, जो इसके जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, and we know X-linked disorder criss-cross होता है, right? And when we are talking about male progeny, right? We are talking about male progeny. That means the mother should be affected, or mother should carry the genes, because X chromosome a son get only from mother, not from the father, because father will give the Y chromosome. Okay. So with that you try to do this question. Hemophilic father and normal. Hemophilic father, that is XHY, नॉर्मल नॉन कैरियर मदर XX. तो यहाँ पे क्या होगा, 0% चांस ऑफ सन टू बी हीमोफिलिक. हीमोफिलिक फादर, नॉर्मल कैरियर मदर कितना चांस है यहाँ पे, 50%. नॉर्मल फादर, देखो यहाँ पे नॉर्मल फादर दिया हुआ है, नॉर्मल कैरियर मदर, यहाँ पे भी चांस कितना हो गया, 50%. दिख रहा है ना, XHY हो सकता है 50%, बाकी क्या होगा, बाकी तो नॉर्मल होगा. अच्छा, नॉर्मल फादर हीमोफिलिक मदर XH. अभी चांस कितना है, 100% सन हैज द प्रोबेबिलिटी टू सफर फ्रॉम हीमोफिलिया. ओके, डन. सो वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर डी. The number of chromosome in leaf cell, if we say it is a leaf cell, then diploid, and diploid value is given as 6 and n value is 3. The number of chromosome in each of the 4 cell of the pollen tetrad. Pollen tetrad क्या होता है, you can see 4 cells. Actually these are 4 cells of microspore that are remain as a cluster at the end of microsporogenesis. और यहाँ पे हर एक सेल का प्लॉइडी होता है हैप्लॉइड, राइट? तो हैप्लॉइड कंटेंट कितना हो गया, 3. So we'll go with the option number C. 133, match column 1 scientist with the column 2 discovery and select the correct option. Here it is given Fleming given the name chromatin to genetic material in nucleus. Okay. George Pallet observed ribosome as dense granular structure. We know that. तो B4 हो गया. Rudolf Virchow जिन्होंने दिया था omnicellular, e-cellular and modified the cell theory. And Schwann will go with the all cells had a thin outer layer. Schwann ने क्या कहा था कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में जो है थिन आउटर लेयर होता है, जिसको बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया गया. तो हमें क्या पता चला, 2413. वी गॉट 2413, ऑप्शन सी. Assertion, the conversion of 1,3-bisphosphoglycerate to 3-phosphoglyceric acid is an energy yielding step. ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन. तो यहाँ पे 1,3-bisphosphoglyceric acid convert into 3-phosphoglyceric acid. One phosphate is out and this phosphate is accepted by ATP to form the, and this phosphate is accepted by ADP to form the ATP. And what is this step? SLP. तो ये जो step है ये energy yielding step है. We are going with this assertion as a correct. This energy is trapped by the formation of ATP. Yes. और ये कौन सा process है? Substrate level phosphorylation. Right? It is also correct. Assertion correct, reason correct, and reason is correct for assertion. So I am going with the option number A. 135, premature fall of fruits and leaves in apple trees can be checked by spraying plants. Premature fall, that means preventing abscission, prevent abscission of young parts. So you should understand till now. What is the answer? Answer is auxin. So in the option just you have to check who is the auxin here, that is indole acetic acid. It is auxin. I will go with the option A. जबकि इथाइलिन promote abscission, right? Abscisic acid promote, gibberellin delay senescence, but for abscission, for preventing abscission, it does not have any role. So I will go with the option number A. 136, match the column. First one is given transforming principle. Who did the transforming principle? That is Frederick Griffith. And this is the first experiment to find out the genetic material, और जिन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को एज ए स्पेसिमेन यूज़ किया था, राइट? सो यहाँ पे ए जाएंगे हम लोग 3 के साथ.
सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जहाँ पे ये कहा गया था कि वन स्ट्रैंड विल बी द टेम्पलेट एंड ऑन दैट टेम्पलेट ए न्यू स्ट्रैंड विल बी फॉर्म, दैट इज फर्स्ट proposed. The idea is given by Watson and Crick, though the experimental verification on bacteria is done by Messelson and Stahl, and in Fababins, who did that? That is Taylor, right? So B, I am going with 1. Lac operant model is given by Jacob and Manat, so I'll go with C4. And कोडन ट्रिपलेट होता है ना, जो 3 नाइट्रोजन बेस है mRNA का, वो एक कोड की तरह काम करता है, ये किसने कहा था? जॉर्ज गैमेओ. सो डी आई एम गोइंग विथ 2. सो यू शुड सी 3142. वेयर इज 3142? 3142. आई एम गोइंग विथ ऑप्शन ए, राइट? या 3142. Let's see section B now. 137. Select the incorrect match. Mature cells may lack nucleus as erythrocyte of many mammals and sheep tube cell of vascular plants. 100% correct. Okay. So when a cell mature, that means differentiate, they do some kind of modifications, right? During some modification, mature cell may lack nucleus. So it's correct. In acrocentric chromosome, the centromere is situated slightly away from the middle. Okay, for that you should know there are 4 types of chromosome based on the position of the centromere. If the centromere is present at the middle, it is called metacentric. If it is present little bit beside the middle, okay, such as given here, slightly away from the middle, it is called submetacentric. If it is more towards a center, it is called acrocentric. And if it is more towards one end, it is known as acrocentric, and if it is at the end, it is called telocentric. So of course this option B is wrong because it is the definition of submetacentric. Okay, in the option C you can see elaborate network of filamentous proteinaceous structure, that is protein filament present in the cytoplasm, and it is together known as cytoskeleton. ये भी correct है. Eukaryotic cells have organelles that contain double stranded circular DNA. तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं about mitochondria and chloroplast because they have plasmid like double stranded DNA, right? And they have 70 as ribosome, so they can again produce protein also. So here we are going with option B because we have to search the incorrect. Okay, 138. During metaphase, what happened during metaphase? Before metaphase, when the nuclear membrane breaks, all chromosomes get scattered in the cytoplasm. Okay, and what we see later, that the spindle fibers from both the poles will come and attach with the kinetochores. Yes or no? This is what happened. And then these chromosomes are aligned at the equatorial line, arranged based on their centromere, and this is called the metaphasic plate. Okay, now let's try to do these questions. During metaphase, centrioles move towards the metaphase plate. No, centriole remain at the poles. Chromosome move toward the opposite poles. No, it happen in anaphase. Spindle fibers attach to kinetochore of chromosome. देखो ये तो दिखा रहा था हम लोग, है ना? तो ये तो करेक्ट हो गया. नंबर सी ये होता है. All of them no. So we'll go with the option number C. Which ones are correct? ATP synthesis in photosynthesis is called photophosphorylation. Yes, photosynthesis light के presence में ATP बनता है, तो बोल रहा है photophosphorylation correct है. Kranz anatomy occurs in leaf, yeah, और ये हमें C4 plants में दिखता है. Reduction of NADP to NADPH occurs during Calvin cycle. ये तो एकदम गलत है. Calvin cycle में रिडक्शन फेज में NADPH को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू कन्वर्ट इनटू NADP. यस, तो ये गलत हो गया. इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज सिंथेसिस ऑफ शुगर बट नॉट ATP. फोटो रेस्पिरेशन एक बहुत ही हार्मफुल प्रोसेस है जहाँ पे ना शुगर बनता है ना ATP बनता है, तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया. हमें कौन सा ढूंढना था करेक्ट, तो हम जाएंगे A और B के साथ. A B करेक्ट, ऑप्शन A. Read the following two statements. Megaspore mother cell undergoes meiosis to produce 4 megaspores. Yes, megaspore mother cell diploid होता है, ठीक है, और meiosis में होते हैं meiosis में होते हैं 2 steps, और 2 steps में total 4 haploid cells बनते हैं. These haploid cells are called megaspore. तो option
स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट हो गया. स्टेटमेंट 2, मेगास्पोर मदर सेल एंड मेगास्पोर बोथ आर हैप्लॉइड. यहाँ पे कर दिया गड़बड़, मेगास्पोर होगा हैप्लॉइड और मदर सेल वो तो मियोसाइट है, ये तो डिप्लॉइड होगा. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो गया ये रॉन्ग हो गया. हम जाएंगे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ऑप्शन नंबर सी. 141, choose the correct statement. Option A, pyruvate is formed in the mitochondrial matrix. No, pyruvate is formed in cytoplasm during glycolysis. During the conversion of succinyl CoA to succinic acid. ये क्रेब साइकिल का स्टेप है. Succinyl coenzyme A convert into succinic acid. ये क्रेब साइकिल का वन एंड ओनली SLP रिएक्शन है जहाँ पे क्या बनता है, GTP. A molecule of GTP is formed. Correct है. Passing on of the electrons. Passing on of the electron. It is talking about ETS. Removed as part of the hydrogen atoms to molecular oxygen. देखो ये जो लाइन है ये एकदम बुक में दिया गया है. Again I am telling, read NCERT line by line. It's time to read now, right? तो यहाँ पे ETS में क्या होता है ये समझ लो कि ETS में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है. माइटोकॉन्ड्रियल ETS के बारे में बोल रहे हैं हम लोग. वो है NADH+. So how do the NADH+ will give the electron? It has to break as NAD+, 2 hydrogen ion and 2 electron, right? Now when I write for FADH2, I will do the same. FADH2, that is FAD+, 2H and 2 electron. देखा. तो यहाँ पे क्या लिखा है, पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स. दिख रहा है ना. और ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कौन एक्सेप्ट करता है, हु इज द टर्मिनल एक्सेप्टर, दैट इज ऑक्सीजन. with simultaneous synthesis of ATP, and then it creates a proton gradient, and the proton will go from high area to the low area via F0 F1 और उससे क्या बनता है ATP. ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ये किसका है, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का. लेकिन यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देने के बाद क्या लिखा हुआ है कि इट ऑकर्स इन ग्लाइकोलाइसिस. सो ये हो गया रॉन्ग. There is a complete breakdown of glucose in fermentation. क्या fermentation में glucose completely break होता है? No, it is incomplete oxidation. So this is also wrong. So for 141, we'll go with option number B, which is incorrect for tRNA. tRNA, that is known as adapter, right? And the 2D structure of tRNA is clover leaf model that is given by Robert Holle. So you can see this is the 3' site, it is the 5' site, और 3' site में जो होता है this is the amino acid binding site. यहाँ पे 3 हमें unpaired base देखेंगे, that is CCA. ये होगा हमारा variable arm, ये होगा DHU arm, this is T-Psi-C arm, and what is this? This is anti-codon arm that has the complementary basis of codon of mRNA. Okay, so structure तो जानना ही पड़ेगा so that you do this question. तो पहला ऑप्शन है tRNA has an anti-codon loop that has bases complementary to the codon. Correct है. tRNA are specific for each amino acid. Yes, because to bind with the codon, they have to have the specific anticodon also, and it will carry the amino acids according to the codon. Okay, so it must be specific. 3 tRNAs are present for the stop codon. No, stop codon do not have any tRNA. So it's a wrong statement. In actual structure means 3D structure. The tRNA is compact molecule which looks like inverted L. That is also correct. So 3D model में inverted L होता है और 2D model में clover leaf model. 143. In diakinesis, a myocyte has 10 pairs of chromosome. Myocyte, okay, that will undergoing meiosis. 10 pairs. Okay, do you understand 10 pairs? So let me show you here what happened in metaphase 1. ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2 का कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिटेलिंग जानना पड़ेगा. ठीक है, तो जब हमने कहा ना 10 पेयर्स है, हाउ वी शुड इमेजिन द 10 पेयर्स लाइंग एट द इक्वेटोरियल लाइन इन द मेटाफेज 1. यू कैन सी. सो दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिसको हम लोग टेट्राइड बोल रहे हैं, यहाँ पे बाइवेलेंट बोल रहे हैं. और ये जो है ये और ये क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. एंड हाउ दे आर अरेंज इन द इक्वेटोरियल लाइन बाय द हेल्प ऑफ द काइजमाटा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोला जा रहा है 10 पेयर्स है
तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 पेयर, ये 1 पेयर हो गया, ये सुन लो। तो 1 पेयर में कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जब आगे जाके यहाँ पे ये पुलिंग होगा, यहाँ पे जब पुलिंग होगा तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दे विल गेट सेपरेट, ये सुनो, नॉन सिस्टर विल गेट सेपरेट एंड यहाँ पे एक क्रोमोसोम चला जाएगा और यहाँ पे एक क्रोमोसोम, मतलब 2 क्रोमोसोम जो था, किसमें था 2 क्रोमोसोम, मियोसाइट में। एट द एंड ऑफ द मियोसिस 1, फर्स्ट डिवीजन के बाद यहाँ पे न्यूक्लियस में 1 क्रोमोसोम हो जाएगा। अभी इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। यहाँ पे 1 पेयर नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 पेयर्स। 10 पेयर्स माने कितना क्रोमोसोम हो गया, 20 क्रोमोसोम। तो जैसे कि यहाँ पे 20 क्रोमोसोम हो गया, तो यहाँ पे मियोसिस 1 के बाद हर एक न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम जाएगा, 10 क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, अभी 10 क्रोमोसोम जो चला गया, इसको सोचते हैं। अभी 10 क्रोमोसोम जो गया यहाँ पे, इसके बाद मियोसिस 2 में क्या होगा, सेंट्रोमियर जो है ब्रेक होगा और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगा। ओके, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होगा तो कैसा होगा, देखते हैं यहाँ पे, देखो ऐसा एक है, 2 सेल है ना, तो यहाँ पे कितना था, 10 क्रोमोसोम था, यहाँ पे भी कितना था, 10 क्रोमोसोम था। और जब उसको ऐसे पुल किया गया, सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे एक क्रोमोसोम चला जाएगा, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, तो यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम 10 क्यों हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होता है तब भी उसको एक क्रोमोसोम ही बोलते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज 1 क्रोमोसोम। इवन इफ 1 क्रोमोसोम हैज 1 क्रोमेटिड, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 1 क्रोमोसोम। मतलब ये रेप्लिकेटेड फॉर्म है और ये नॉन रेप्लिकेटेड फॉर्म है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो ऑप्शन बी पे ध्यान दो, 10 एट द एंड ऑफ डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन एंड 10 एट द एंड ऑफ द सेकेंड डिवीजन। समझ आ गया। सो आई एम गोइंग विद द ऑप्शन नंबर बी। Which statement about ATP synthesis is true? ATP can be synthesized in a cell through substrate level phosphorylation SLP, yes, glycolysis में 2 बार होता है, Krebs साइकिल में 1 बार। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि फोटोसिंथेसिस में होगा, लाइट रिएक्शन में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यस, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ड्यूरिंग ETS, करेक्ट है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF is the establishment of the proton gradient, electrochemical potential across the inner membrane of the Christie, yes, Christie हो गया ये, the inner mitochondrial membrane। यहाँ पे हो गया PMS, PMS क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हो गया F0 F1 कॉम्प्लेक्स, ओके, एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके बीच में होता है, बिटवीन PMS एंड द मैट्रिक्स अक्रॉस दिस क्रिस्टी। और फिर हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन के जो ETS है, और हमें एनर्जी मिलता है यहाँ पे F1 में, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो गया। प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज एसेंशियल फॉर द बैक फ्लो ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द आउटर चेम्बर। हु इज द आउटर चेम्बर, अभी जो मैंने कहा PMS टू द मैट्रिक्स वापस आने के लिए किसके थ्रू, थ्रू द प्रोटीन चैनल, है ना। और F1 में क्या बनता है, ATP बनता है, जस्ट नाउ आई टोल्ड। सो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग ATP। आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़े स्टेटमेंट्स है, जस्ट रीड इट पेशेंटली। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनिक फ्रूट्स आर साइट्रस एंड मैंगो। सो लेट्स सी द ओव्यूल, ओके। व्हाट इज द टिश्यू ऑफ ओव्यूल कॉल्ड, न्यूसेलस, एंड व्हाट आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कॉल्ड, दे आर कॉल्ड इंट्यूगमेंट्स। न्यूसेलस और इंट्यूगमेंट्स ये सारे पेरेंटल स्पोरोफाइटिक सेल हैं। जब पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन हम लोग देखते हैं तो जो स्पोरोफाइटिक सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं, एक्टिवली डिवाइड करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, जिसके वजह से सेल नंबर बहुत इंक्रीज हो जाता है और सेल जो है वो धीरे धीरे एम्ब्रायो सैक के अंदर बडिंग करना शुरू करता है। दैट मीन्स सेल्स एंटर इनसाइड द एम्ब्रायो सैक, and whatever cell that enter into the embryo sac, they start behaving as a embryo. Each one post fertilization develops as a embryo, okay. So there will be many embryo in the ovule, and this ovule post fertilization will develop into seed. So this seed will contain so many embryo, इसीलिए इस condition को क्या कहते हैं, polyembryony। even इसको कहा जाता है adventive embryony।
ठीक है, स्पोरोफाइटिक बडिंग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफाइटिक सेल बड इनसाइड द एम्ब्रायो सेल। ओके, और ये कहाँ मिलता है हमें, साइट्रस और मैंगो में। अभी पॉइंट्स पढ़ते हैं। मोर देन वन एम्ब्रायो इज सीन इन ए सीड, करेक्ट है। मेगास्पोर सेल नहीं, मेगास्पोर सेल डज नॉट प्रोट्रूड, राइट। मेगास्पोर सेल डेवलप इनटू एम्ब्रायो sac. So who is protruding? The sporophytic cells. It is called adventine polyembryony and sporophytic budding. So these are correct. What we need to search? Correct statement. I'll go with A and C. Option number B. A combination of the lowest and highest energy molecule is found in which of the pair? ये क्वेश्चन करना बहुत इजी है अगर हमें कंटिन्यूअसली फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस से लेके लिंक रिएक्शन से लेके क्रेब साइकिल के सारे अगर स्टेप्स हमें पता है तो बाय लुकिंग एट द सीक्वेंस हम ये बता सकते हैं किस में ज़्यादा एनर्जी होगा और किस में कम। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू होता है ग्लूकोज से, तो ऑफ कोर्स ग्लूकोज में क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी होगा। और इस अगर हम लोग ऑप्शन में देखें सबसे लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड में सबसे कम एनर्जी होगा। ये तो बिना कैलकुलेशन के भी हम लोग बोल सकते हैं ना। तो थोड़ा सा मैं लिख दूँ यहाँ पे कि सबसे कम होगा मैलिक एसिड में और सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगा ग्लूकोज में। क्लियर है। तो यहाँ पे पूछा था लोवेस्ट एंड हाईएस्ट, आई विल गो विद द ऑप्शन बी, लेकिन यू शुड नो द वैल्यूज ऑल्सो। तो एक बार ट्राई करते हैं हम लोग एकदम सिंपल मेथड से, जैसे कि ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज से स्टार्ट होता है तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे 38 ATP होगा ग्लूकोज में इफ़ वी आर यूजिंग मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। ओके, अच्छा ग्लूकोज के बाद क्या आता है, पायरुविक एसिड। हाउ मेनी पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड। सो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द पायरुविक एसिड तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस का जो ATP है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 38 - 8 दैट इज 30। 30 ATP किसके लिए है, 2 पायरुविक एसिड के लिए है। सो फॉर 1 पायरुविक एसिड इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 15 ATP। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ग्लूकोज में 38, पायरुविक में हो गया 15। पायरुविक एसिड के बाद आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अच्छा यहाँ से आई कैन रिमूव 2 मार्किंग। ओके, हम लोग एक का ही कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी इजी। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम है, यहाँ पे एक NADH बनता है, एक NADH बनता है। एक NADH का वैल्यू कितना है, वैल्यू होता है 3। तो एसिटाइल कोए के लिए कितना एनर्जी होगा, 12। एसिटाइल कोए इट विल बी 12 ATP। ठीक है, एसिटाइल कोए साइट्रिक एसिड बनाता है इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रेब साइकिल, और इनके बीच में कोई एनर्जी तो बना नहीं, तो कुछ माइनस नहीं करना है, तो इसका भी क्या होगा 12, तो इसका भी क्या होगा 12, तो साइट्रिक एसिड का भी 12। ठीक है, अच्छा आगे जाते हैं। साइट्रिक एसिड क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। यहाँ पे एक NADH बनता है, तो यहाँ से कितना माइनस करना पड़ेगा, -3 ATP करना पड़ेगा। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट के लिए कितना हो गया 9, वो तो पूछा नहीं है। ठीक है, आगे जाते हैं। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से क्या बनता है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा, फिर से -3, तो -3 कर देते हैं, कितना बचा 6। सक्सिनल कोए से क्या बनता है, सक्सिनिक एसिड। यहाँ पे एक GTP बनता है, माने -1 ATP करना पड़ेगा, तो -1 कर देते हैं, कितना मिला कितना मिला 5। तो सक्सिनिक एसिड में कितना ATP है, 5 ATP। ठीक है, अच्छा सक्सिनिक एसिड के बाद बनता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड माने 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2, तो माइनस करेंगे -2 ATP, तो -2 करो, 5 - 2 कितना आ रहा है 3, तो मैलिक एसिड का वैल्यू कितना होगा 3 ATP। तो सबसे लोएस्ट आ रहा है मैलिक एसिड का, और यहाँ पे ग्लूकोज का आ रहा है 38। ठीक है, क्लियर है। और ऐसे माइनस करके भी कर सकते हो, और यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ऑल्सो। The strength of linkage will be more when the distance between 2 genes is greater. If 2 genes are very close, हमेशा याद रखना है अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर विल बी लेस फ्रीक्वेंट इफ लिंकेज इज हाई। हाँ, अगर जीन बहुत क्लोज है, एक क्रोमोसोम में जीन अगर बहुत क्लोज है, उनका लिंकेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट देम एंड दे विल हैव मोर टेंडेंसी टू गो टुगेदर इनटू द गैमेट्स। तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, तो हम कौन सा पॉइंट देंगे, इफ द असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, आई एम गोइंग विद द ऑप्शन डी।
148, one of the easiest question I can see here. Here one stage is given, a stage in cell division is shown in the figure given below, identify the stage. What is the stage is showing? You can see the chromosomes are moving towards the opposite poles, centromere break हो चुका है और spindle fiber short हो रहा है. That means what is the answer? The answer is anaphase. ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हम लोग जो फेस देख रहे हैं एनाफेस, इसी को टिक कर दे सकते हैं क्योंकि टेलोफेस नहीं होगा, प्रोफेस नहीं होगा, इंटरफेस नहीं होगा. और अगर ऑप्शन भी पढ़े एक बार देख लेते हैं, एनाफेस में क्या लिखा है, स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट. यस, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो रहा है, डॉटर क्रोमोसोम पुल टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स बाय द ब्रेकिंग ऑफ द सेंट्रोमियर. सो ऑफ कोर्स हियर ऑप्शन इज ए. In a given sample of nucleic acid, G plus A, that is purine, content is not equal to C plus T. C plus T क्या है, pyrimidine. तो एक DNA सैंपल में अगर प्यूरिन और पायरिमिडिन इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट फॉलोइंग चारगप रूल. चारगप रूल इज एप्लीकेबल टू डबल स्टैंडर्ड DNA. और अगर रूल फॉलो नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्यों फॉलो नहीं कर रहा, बिकॉज द DNA इज सिंगल स्टैंडर्ड. ओके, आई एम गोइंग विद द ऑप्शन नंबर सी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर 150. ड्यू टू environment, the difference in shape of leaves produced in air and those produced in water in buttercup plant represent the heterophilous condition. Heterophilous means presence of two different types of leaves in the same plant. But वो environment की वजह से भी हो सकता है या तो डेवलपमेंटल प्रोसेस की वजह से भी हो सकता है. जबकि बटर कप में जो हेटेरोफाइली है दैट इज बिकॉज ऑफ द हैबिटेट चेंज. ओके, सो इन द एयर यू कैन सी a different type of leaf. Okay, and when it is in the aquatic habitat you can find a different types of leaves. तो ये हेटेरोफाइलस है, ये करेक्ट है. The phenomena of heterophyly, example of plasticity. Heterophyly plasticity का example है. Just a second, what is the meaning of plasticity? Plasticity means that the plant follows some changes in the morphology because of the change in some metabolic pathway, either in the response of the developmental changes or in the response of the environmental changes. और वहाँ पे plasticity का एक बहुत ही important example है heterophyly. तो यहाँ पे जो reason है वो भी सही है, लेकिन क्या ये reason इसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है. सो आई एम गोइंग विद द ऑप्शन नंबर बी. थैंक यू सो मच. होप योर एग्जाम वेंट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द